Hi guys, today I am here to start the first topic of OCM, that is Principle of Management. I am going to start first lesson of OCM, that is Principle of Management. See, I have tried my best to keep it very simple, to make it very simple so that it get easier for you all to understand the basic concept. So our first topic is प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हमें पता है. प्रिंसिपल मतलब a certain rule, certain regulations, certain guidelines which a person has to follow. A management is an art of getting things done through people. Management is a group activity where people are involved. So management मतलब है आपको चीज़ों को complete करवानी है. And प्रिंसिपल a set of guidelines है जो मैनेजर को पता होना चाहिए, जिससे मैनेजर को हेल्प मिलती है अपनी कंपनी के लिए कुछ बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए. See, as the session will get complete, after this session you will get to know meaning, concept, definition of principle of management and nature of principle of management. जैसे ही सेशन कंप्लीट होता है ये दो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी आपके मन में, आपके माइंड में. मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी आपके माइंड में एज सुन एज दिस सेशन विल गेट completed. Now we are going to start with meaning of principle of management, the basic concept of principle of management. Principle of management are a set of guideline, basic rules और idea. Principle of management क्या है, एक set of guidelines है, rules है, idea है. It assists manager to conduct the management properly and efficiently. It helps, assist manager means it help manager so that he can conduct the activities, he can conduct the management properly and efficiently. It assists the manager in making management decision. It helps the manager at the time of taking important managerial decision. जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैनेजर को बहुत हेल्प करते हैं जब उसे कंपनी से रिलेटेड, कंपनी के लिए कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होता है. इट इज़ फ्रेम टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय. बेसिकली जो प्रिंसिपल्स है ये फ्रेम हुआ है ताकि प्रॉपरली गाइड कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके एम्प्लॉय के बिहेवियर को. तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, बेसिक रूल्स और आइडिया जो मैनेजर को हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिसीजन, एट द टाइम ऑफ मैनेजमेंट, to manage the things properly and efficiently. It is framed to guide and influence the behavior of employee. ये basically frame हुआ है ताकि लोगों के behavior को influence कर सके एंड आप अपना डिज़ायर रिजल्ट अचीव करने में आप सक्सेसफुल हो सके. So here is the meaning of principle of management. If you want, you can take this screenshot and you can keep it for reference. Principle is defined as a fundamental truth or proposition, that is idea, that serve as a foundation, that serve as a base for a system of a belief or behavior or for chain for reasoning. Principle एक well defined rules and regulations है, फंडामेंटल ट्रूथ है जो एज अ बेस काम करता है एक सिस्टम के लिए, लोगों के लिए एंड फॉर चेन ऑफ रीजनिंग. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट वन इज यूनिवर्सली एप्लीकेशन. सी यूनिवर्सल एप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह पे एप्लीकेबल है. इट इज एप्लीकेबल everywhere. It is applied to all type of organization irrespective of their size and nature. आपका ऑर्गेनाइजेशन चाहे साइज में बहुत बड़ा हो, छोटा हो, आपका कोई भी बिजनेस हो, आप कोई हॉस्पिटल रन कर रहे हो, आप हॉस्पिटैलिटी में हो, आप सर्विस सेक्टर में हो, बट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है
it is universally applicable, it is applicable everywhere. Next is general guidelines. It provides general guidelines in tackling the organizational situation as well as in solving problem. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक गाइडलाइंस है, जनरल गाइडलाइंस है इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन एज वेल एज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम. आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यू विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन. जब आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगी ऑटोमेटिकली यू विल कम अप विथ सम सोल्यूशन. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक गाइडलाइंस है, बेसिक गाइडलाइंस है, जिससे आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. मतलब इट इज़ वेरी सिंपल दैट इट इज़ डेवलप बाय थॉरो रिसर्च. अभी किसी पर्सन के एक माइंड में आया एंड वो प्रिंसिपल बन गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट इज़ डेवलप्ड एज प्रिंसिपल आफ्टर इट्स प्रैक्टिस. पहले तो बहुत सारा रिसर्च हुआ है, ऑब्जर्वेशन हुई है एंड जो उसके रिजल्ट्स है उसको अप्लाई किया गया है इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड उसके बाद ही उसे एज अ प्रिंसिपल फ्रेम किया गया. तो इन वेरी शॉर्ट, प्रिंसिपल इज डेवलप्ड बाय रिसर्च, by observation and by experiment. Next है flexibility. See, it is very simple. The principle of management is flexible in nature. इसका मतलब है it is not at all rigid, it is not at all hard and fast. ये बिल्कुल भी hard and fast नहीं है. It can be modified, can be changed according to the changing situations and requirement. Principle of management जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, जो ईजिली आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो एज पर द सिचुएशन, एज पर द कंडीशन, एज पर योर रिक्वायरमेंट. तो इन शॉर्ट इट इज़ वेरी सिंपल दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एट ऑल रिजिड. हार्ड एंड फास्ट नहीं है, डेफिनेट नहीं है. इट कैन बी चेंज, इट कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. नेक्स्ट इज बिहेवियरल इन नेचर. बिहेवियरल इन नेचर, सी मैंने जैसे पहले भी बताया है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर. मैनेजमेंट हमेशा एक ग्रुप एक्टिविटी है. सो बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग. The next point is cause and effect relationship. Now see, principle are the base for taking decision. ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है. प्रिंसिपल एक बेस है डिसीजन, जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है. दे डिटरमाइन द कॉज एंड रीजन फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट. वो डिटरमाइन करता है, वो डिसाइड करता है कि कॉज एंड रीजन फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट. अगर कोई इफेक्ट मतलब एक्शन रिएक्शन, ये सब डिटरमाइन करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का डिसीजन लेना है तो यू हैव टू फॉलो मैनेजर फॉलो प्रिंसिपल्स. तो प्रिंसिपल एक बेस है जिसको यूज करके आप अपना डिसीजन लेते हो. तो इट ऑलवेज डिटरमाइन द कॉज एंड इफेक्ट फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन. नेक्स्ट इज ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस. अभी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सारे इक्वली इम्पोर्टेंट हैं. इफ़ यू वांट गुड रिजल्ट, इफ़ यू वांट डिज़ायर रिजल्ट, आपको जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट अगर आपको लाना है, वैसा रिजल्ट अगर आपको चाहिए, यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू प्रैक्टिस all the principles simultaneously. बिकॉज आप एक प्रिंसिपल अप्लाई करोगे, दूसरा अप्लाई नहीं करोगे, तो जो भी आपका डिज़ायर रिजल्ट है वो नहीं आएगा. बिकॉज सारे जो प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस. ऑल द प्रिंसिपल्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट.
कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई कम इम्पोर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे प्रिंसिपल्स इक्वली इम्पोर्टेंट है। सी आई विल गिव यू वन एग्जांपल। अकॉर्डिंग हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से आई विल गिव यू 2-3 प्रिंसिपल्स। पहला है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। उनके हिसाब से वर्क जो है, काम जो है, उसको डिवाइड होना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली इट शुड बी अलॉटेड टू द पीपल हु आर बेस्ट इन इट। काम को डिवाइड करो और उसको उसी को अलॉट करो जो काम में बहुत अच्छा है। अभी उनका एक और प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। एवरी एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयरली। हर एम्प्लॉय को उसके जॉब के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से उसको पे करना चाहिए। तो आप डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हो, काम को अलॉट कर रहे हो, काम को डिवाइड कर रहे हो, बट आप यू आर नॉट रेडी टू पे, आप रेम्यूनरेशन प्रॉपरली पे नहीं कर रहे हो, तो आप एक प्रिंसिपल फॉलो करोगे, दूसरा फॉलो नहीं करोगे, तो आपका जैसा आपको रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं आएगा। बिकॉज सारे प्रिंसिपल्स जो है all are of equal importance. You have to follow all the principles simultaneously if you want desired result. आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको सारे प्रिंसिपल्स को इक्वली इम्पोर्टेंस देना है, सारे प्रिंसिपल्स को साइमल्टेनियसली फॉलो करना है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। नहीं तो आपको जैसा आपको रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं all are of equal importance. With this we have completed 7 nature of principles we have completed. Now let's have a quick revision of all the points. First one is universally applicable. जैसे आपको पहले भी बताया है, इट इज़ वेरी सिंपल। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हर जगह पे एप्लीकेबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, नेचर, फील्ड। आप किसी भी फील्ड में हो, आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप हॉस्पिटल रन कर रहे हो, आप एनजीओ रन कर रहे हो, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो, या आपका बिजनेस है, हर जगह पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल। नेक्स्ट इज जनरल गाइडलाइंस। ये एक बेसिक फंड जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इट प्रोवाइड general basic guidelines with the help of which a manager can tackle a situation and can solve a particular problem. ये एक बेसिक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जिससे आपको एक प्रॉब्लम को समझने में इजी हो जाता है एंड उस प्रॉब्लम को फिर आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये हमने डिस्कस किया है। जो प्रिंसिपल्स है वो बहुत इजीली फ्रेम नहीं होते हैं। किसी के माइंड में एक थॉट आया कि हाँ ये गाइडलाइन, बेसिक गाइडलाइंस है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होना चाहिए, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रिंसिपल, तो वो ऐसे डिसाइड नहीं होता है। इट इज़ डेवलप्ड बाय अ थॉरो रिसर्च वर्क, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट। बहुत सारा रिसर्च वर्क किया जाता है, ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एंड जो रिजल्ट है उसको अप्लाई किया जाता है पर्टिकुलर कंपनी में एंड आफ्टर दैट तब उसको एज अ प्रिंसिपल माना जाता है, एज अ प्रिंसिपल वो फॉर्म हो जाता है, फ्रेम होता है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड। ये पहले भी बताया मैंने, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल भी रिजिड नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट कैन बी मॉडिफाइड, इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज बिहेवियरल इन नेचर। सी मैनेजमेंट हमेशा से ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई किया जाता है सो दैट यू कैन इन्फ्लुएंस you can influence the people's behavior to get the desired result. आप उनके बिहेवियर को आप इन्फ्लुएंस करो ताकि आपकी कंपनी में आपको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा मिले। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इट ऑलवेज एक्सप्लेन, इट ऑलवेज डिफाइन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वो हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करता है बिकॉज जो प्रिंसिपल्स है वो बेसिक गाइडलाइंस की तरह काम करता है। मैनेजर को कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो प्रिंसिपल्स उसको एज अ बेस लेके वो अपना डिसीजन लेता है, जो जिससे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप
डिटरमाइन होती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो होती है। लास्ट इज ऑल प्रिंसिपल ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सब इक्वली इम्पोर्टेंट है। कोई प्रिंसिपल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई कम इम्पोर्टेंट है, एक फॉलो करोगे तो चलेगा, एक फॉलो करोगे तो नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे ऑल द प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंट एंड इफ़ यू वांट गुड रिजल्ट, इफ़ यू वांट डिज़ायर रिजल्ट, आपको हर एक प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, विद दिस आई एंड माई सेशन एंड आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। आपको बेसिक जो कंसेप्ट है आपको क्लियरली समझ गया है। यहाँ पे आज के सेशन में वी हैव कंप्लीटेड मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल। ये 3 टॉपिक्स हमने आज कंप्लीट किए हैं। तो आई होप आप सबको क्लियर है ये टॉपिक। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू। विद दिस आई एंड माई सेशन।